Hello students, in the unit number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acid, at presently we are focused on the chemical reactions of aldehyde and ketones. So in this case of chemical reactions of aldehyde and ketones, we know that there are different 6 types of reactions in the case of or in the title, under the title of aldehyde and ketones, which is first one is the nucleophilic addition reactions. So under the title of nucleophilic additions reactions, we classified a different 4 nucleophiles that we have to add. One is the hydrogen cyanide, number 2 sodium bisulfite, number 3 Grignard reagent, and number 4 addition of alcohol. Number 2 is the nucleophilic additions reactions followed by eliminations of a molecule of water that can be studied in this particularly session. Then reductions, next one oxidations, halogenations and reactions with alkalis. There is a 7 categories too, which is miscellaneous reactions, but in our NCERT textbook they are given only 6 different titles. Okay, so at presently we are focusing on a 12.42 is a nucleophilic additions reactions followed by eliminations of a molecule of water. What is the meaning of that? Because in our textbook कई लोगों को ऐसे इसमें दिक्कत हो रही है कि ये टाइटल क्या समझा रहा है या बता रहा है. एडिशन मीन्स वी हैव टू ऐड, पहले हम ऐड करेंगे यानी एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसमें इलिमिनेशन हो जाएगा. किसका? वाटर का. तो यानी वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वी हैव टू ऐड एंड देन वी हैव टू इलिमिनेट. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एज वेल एज इलिमिनेशंस. तो इन दिस केस हम किसका एडिशंस करना चाहेंगे? सो वी एट प्रेजेंटली एडिशंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स. अमोनिया डेरिवेटिव्स मींस अमोनिया और देयर डेरिवेटिव्स, राइट? So we know that additions of ammonia derivatives in the case of this theory or these sessions, aldehyde and ketones reacts with a number of ammonia derivatives, such as this is particularly given is like that, and this is NH2OH is called as an hydroxylamine. Hydrazine means NH2NH2. This is phenylhydrazine. This is NH2NH6H5. Next 2,4-dinitro. This is 2,4-dinitro phenylhydrazine. Okay. Then or sometimes it's called as a Brady's reagent. And last one is a semi-carbazide. So in 1, 2, 3, 4 and 5. 5 are the different derivatives of ammonia that can be added into the aldehyde and ketone in presence of a very weak acidic media to form a compounds containing C double bond O, right? So if we represent the ammonia derivatives, because all these 1, 2, 3, 4, 5 derivatives that can be simplified, which is written like that NH2Z, where either Z is equal to what? So Z is equal to, in the case of hydroxylamine is OH, in the case of hydrazine is NH2, in the case of phenylhydrazine is NH6H5, in the case of 2,4-dinitro phenylhydrazine, it means that your Z is NH6H5 and 2 nitro groups, and Z in the case of semi-carbazide is a NHCONH2. So these are the derivatives that can be we added into the aldehyde and ketone in presence of acidic media, right? So once again, what is the common way of the reactions? The common way of the reactions is like that C double bond O, which is NH2Z. This NH2Z is nothing but it's a one type of ammonia derivatives, right? If we add it in the presence of acid, right? So first we get a product is like that. This is COH. So what is in the case of acidic media? So this acidic media which can be involved into the so in this case of aldehyde ketone, when it reacts with ammonia derivatives, this reaction is reversible and which is catalyzed by acid, and the equilibrium which is favors the product formations due to the rapid dehydrations of the tetrahedral addition product. हमें यहाँ पे क्या है, देखिए क्या aldehyde and ketone है और ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ वो उसका रिएक्शंस होगा, तो उसमें फर्स्ट एसिडिक में से वो H है वो इसको प्रोटोनेटेड करेगा, यानी पाई शिफ्टिंग टुवर्ड्स टू O. नाउ कार्बन इज प्लस डेल्टा. So at that time, now the attack of this NHZ towards to this partially positive carbon
and we get a tetrahedral addition product. And now with the help of this eliminations of water, which is converted into corresponding derivatives. Okay, उसका एक मैकेनिज्म भी हमें देखना चाहिए कि ये जो मैकेनिज्म हम देख रहे हैं तो वो मैकेनिज्म क्या है. सो विच इज मैकेनिज्म ये इस तरह से कि जैसे यहाँ पे कंट्रोल ऑफ पीएच ड्यूरिंग द एडिशंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स. So the additions of ammonia derivatives to aldehyde and ketone, we know that it is catalyzed by acids. So in acidic medium, the oxygen of the carbon atom, the oxygen of this carbonyl group, okay, which is get protonated, and which in turn by the resonance, increase the positive charge on the carbonyl carbon. So as a result, weak nucleophile likes ammonia derivatives, they are readily attacked towards the carbonyl group. इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका मैंने मैकेनिज्म बताया हुआ है. सी डबल बॉन्ड है, H प्लस है, प्रोटोनेटेड हो जाएगा और इसमें मुझे कार्बोकेटाइन जैसे C प्लस है और C प्लस के साथ वो NH2Z जुड़ जाएगा. तो फर्स्ट मैंने NH2Z को बताया हुआ है, N प्लस है तो वो कोई भी हाइड्रोजन के पास से वो इलेक्ट्रॉन अपना है वो ले लेगा, राइट, और तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा. एंड नाउ जो दोनों वाला ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा और फिर से H निकल जाएगा और ये HOH वाटर की तरह से वो निकल जाएगा और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट. तो मैंने थोड़ा उसका मैकेनिज्म दिखाया हुआ है. आपकी बुक में इतना बढ़िया तरह से मैकेनिज्म इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उसने रोल ऑफ एसिड्स का कोई इसमें बातचीत नहीं की हुई है. मैं थोड़ा इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. सो इन द केस ऑफ मीडियम, जैसे हम यहाँ पे कई लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे मीडियम है वो कैसा ले लें. जैसे हमने यहाँ पे H प्लस लिया है, अगर आप ज्यादा एसिडिक ले लेंगे तो हमें मालूम है कि दिस एमोनिया डेरिवेटिव्स आर बेसिक इन नेचर, सो दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट. तो ये तो चलेगा नहीं. So due to the absence of a lone pair of electrons on nitrogen atom, these ammonium salts will no longer to be nucleophile. Hence the reaction will not occur. तो ये पहली दिक्कत है. अगर हम इसका एसिडिटी है विच इज ओनली वेरी स्लाइटली एसिडिक करेंगे तो वो कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा. सो विच कैन नॉट बी इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. हेंस द वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक अमोनिया डेरिवेटिव्स विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट. So in other words, the reaction does not occur. Therefore, to carry out such a reactions, so the optimum value of pH is needed. Usually, a pH of is around 3.5 is maintained. So in the case of pH, 3.5 pH is maintained in the case of these reactions. Okay. So different types of the reactions when we follow. So once again. We have a aldehyde or ketone. So it's a general reactions of aldehyde and ketone when it's acidified in the presence of pH 3.5. When first it reacts with hydroxylamine, so there is a H2. आपको अच्छी तरह से और बहुत इजी वे से याद रखना है. तो यहाँ से H2 चला जाएगा, यहाँ से O2 चला जाएगा, मीन्स O या पानी, और ये जो है वो कंबाइंड हो जाएगा और जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ऑक्साइन. जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दे. जैसे मेरे पास फॉर्माल्डिहाइड है तो क्या मुझे मिलेगा, फॉर्माल्डिहाइड यानी मीथेनॉल, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, मीथेनॉल ऑक्साइन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथेनॉल है तो हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल ऑक्साइन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोपेनॉन यानी एसीटोन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन ऑक्साइन. ठीक है, तो मैंने यहाँ कॉमन लिख दिया है. आप कोई भी जैसे फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, कोई भी आप इसमें एग्जांपल्स लगा सकते हैं. दूसरा है हाइड्रेजिन. सो दिस हाइड्रेजिन कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे H2 है तो ये H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और विच इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेजोन, द रिस्पेक्टिव हाइड्रेजोन, right? So for example, if I having a formaldehyde, so it's formaldehyde hydrazone, acetaldehyde to acetaldehyde hydrazone or ethanol hydrazone. Likewise, this is propanone, so propanone hydrazone. Next, the same hydrazine which is attached with the phenyl ring, so it's called as phenyl hydrazine. Now this phenyl hydrazine is attached to this carbonyl or aldehyde and ketone. So there is a removal of H2 and O. So it's a removal of water and which is converted into phenyl hydrazone. Phenyl hydrazone. Right? Next one is a 2,4-dinitrophenyl hydrazine. This is 2,4-dinitrophenyl hydrazine. So यहाँ से H2 और O वो निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NH यहाँ पे लग जाएगा. इसका नाम है ना 2,4-dinitrophenyl hydrazine. उसको कई बार DNP से बोला जाता है और इट्स अ वन टाइप ऑफ ब्रेडीज रिएजेंट. इट्स अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ aldehyde as well as ketone.
ये आइडेंटिफिकेशन भी है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इसके डिटेल में भी बात करूंगा। यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाएगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। कई बार येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, यानी रेड प्रेसिपिटेस, कोई भी कलर विच इज डिपेंड्स अपॉन द फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन की वजह से वो हो सकता है। लास्ट वन है वो है एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन विच इज एसिडिफाइड। द ऑप्टिमम pH इज 3.5 विद द रिएक्शंस ऑफ दिस सेमी कार्बेजाइड। यहाँ पे बहुत कई लोगों को दिक्कत होती है, कई बार उसको गुस्सेट में या उस ऐसे में ऐसा पूछा भी गया है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी H2 निकाल देते, जैसे यहाँ से निकाल देगा, राइट। देखिए जो मैंने फर्स्ट दिखाया हुआ था NH2H, इसमें H2 है, यस। यहाँ पे से कोई भी निकालेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो एक ही बाजू है, यहाँ पे भी एक, लेकिन यहाँ पे दो साइड H2 है। तो कई बार कई लोग ये ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसके बगल में C डबल बॉन्डो है। तो जो C डबल बॉन्डो का जो उसका जो O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरा उसका खिंचाव रखेगा, उसका स्ट्रेस वैल्यू रखेगा। तो यहाँ से नहीं रिलीज होगा, थोड़ा दूर से रिलीज होगा। इन शॉर्ट ये H2 और यहाँ से O निकलेगा, सो C डबल बॉन्ड NNHCONH2 हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। सो विच इज कॉल्ड एज एन सेमी कार्बेजोन। इफ formaldehyde or methanol is reacts with a semi-carbazide, so it's converted into methanol semi-carbazone. Likewise, ethanol semi-carbazone. Likewise, acetone semi-carbazone. ठीक है, तो हमने ये जो मैंने आपको सभी रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं वो क्या है। सो ऑल द अबाउ डेरिवेटिव्स, दिस ऑक्साइन, हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, all derivatives, they are well defined crystalline solids. Okay, so once again all the above derivatives, right, are well defined crystalline solids with sharp melting point, therefore इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो therefore they are used for the identification and characterizations of a aldehyde and ketone. So what are the purpose of this identification and characterization of aldehydes and ketones. तो इससे हमें पहचान हो सकती है कि हमारा aldehyde और कीटोन है कि नहीं। फर्दर दिस डेरिवेटिव्स कैन बी डीकम्पोज्ड, जैसे जो ये सभी जो डेरिवेटिव्स है हमें मिली है विच इज डीकम्पोज्ड बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स to regenerate their original carbonic compounds. So therefore this derivatives is also used for the purification of aldehyde and ketone. तो जैसे हमें ये जो भी डेरिवेटिव्स हमें मिल रही है, देखिए मैं यहाँ पे आपको वही पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि दिस डेरिवेटिव्स can be decomposed by boiling with dilute mineral acids to regenerate the original carbonyl compounds, right? Original carbonyl compounds. Okay, therefore these derivatives are used for the purification. So इसका हमें इंटेंशन क्या है, प्यूरिफिकेशन का हमारा जो इंटेंशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है थोड़ा हमारी बुक में बहुत शॉर्ट में ये समझाया गया है, लेकिन मैंने आज थोड़ा उसको डिटेल में डाला हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। मैं एक बार आपको एक और भी मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एक बार एक MCQs से देखिए, मैं एक आपको MCQs यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि वो MCQs कैसे यहाँ पे ड्राफ्ट की गई है।
ये एमसीक्यूज ऐसे ड्राफ्ट की गई थी, जैसे मैं एक आपको बता रहा हूं, मेरे पास है जैसे यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलेमाइड, तो हमें मालूम है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दे गिव्स व्हाट CH3C डबल बॉन्ड NOH NH, राइट। तो एक बार उसने एग्जाम में क्या पूछा था, अब देखिए एग्जाम में उसने ऐसा पूछा था कि जैसे मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, वो हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ एसिडिक मीडिया में वर्क करेगा तो मुझे कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। तो सभी लोग बोलेंगे एक नहीं। अब एक बार देखिए, जैसे मैंने एक बार आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाया हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है, देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, और यहाँ N के पास लॉन पेयर है, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि दिस इज प्लेनर कंपाउंड C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, तो इसका सीस और ट्रांस मुझे मिलेगा, सीस और ट्रांस मिलेगा, तो हो सकता है। लेकिन यही जो क्वेश्चंस में एसीटोन के लिए लगाना चाहता हूं, जैसे मेरे पास एसीटोन है और विथ हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, सो डेफिनेटली दे गिव CH3CH3 NOH, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द सेम मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ऐसे कई टाइप के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा प्रिपेयर ज्यादा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशंस में मैं रिडक्शन के साथ आपके साथ बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।